بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کی دیواروں کے اندر ایک بوڑھا باپ خاموشی سے سہ رہا تھا۔ ایک ایسی رات آنے والی تھی جب اس گھر کا مستقبل ایک معصوم بچے کے ہاتھ میں موجود لکڑی کے ڈنڈے سے بدل جائے گا، اور پھر کوئی نہ جانتا تھا کہ اس تذلیل بھری کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ جب کھانا کھاتے وقت ابا کے ہاتھ سے پلیٹ اچانک گر کر ٹوٹ گئی تو بلال اور فاطمہ نے بوڑھے باپ کو خوب گالیاں بکواس کی۔ ابا ڈر سے سہم گیا۔ میں گھر کی چھوٹی بیٹی تھی، کچھ نہ کر سکی۔ دوسرے دن فاطمہ نے جانوروں کے برتن میں ابا کو کھانا ڈال کر دیا اور بولی، باہر جا کر کھاؤ۔ اس معاملے میں بلال نے بھی فاطمہ کا خوب ساتھ دیا۔ چند دن بعد فاطمہ کے بیٹے نے ایک لکڑ کا ڈنڈا پکڑا اور صبح کا وقت تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی تھی تاکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا محسوس کر سکوں۔ صحن کے کونے میں لگے اس پرانے نیم کے درخت کے پتے خاموشی سے گر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس گھر کی خوشیاں ایک ایک کر کے جھڑ گئی تھیں۔ میری نظریں صحن کے اس کچے کونے پر جمی تھی جہاں ابا ایک پرانی لکڑی کے بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے سفید بال ہوا میں لرز رہے تھے اور ان کا جھکا ہوا وجود دور سے کسی کٹے ہوئے درخت کی مانند لگ رہا تھا۔ میں نے کرب سے آنکھیں موند لی تو ماضی کی ایک لہر مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، مئی کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ ابا کام سے واپس آئے تھے۔ ان کی قمیض پسینے سے شرابور تھی اور چہرہ دھوپ سے تمتما رہا تھا۔ میں اور بلال بھاگ کر ان کے گلے لگ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی میلی سی جیب سے 2 ٹافیاں نکالیں اور ہمیں دے دیں۔ میری گڑیا کے لیے وہ مسکرائے تو ان کی آنکھوں کے گرد جھریاں ایک عجیب سی سکون کا احساس دلاتی تھیں۔ ان دنوں گھر میں بلال کی پڑھائی کا بہت تذکرہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اب اسکول جانے لگے تھے۔ اب رات بھر لیمپ کی روشنی میں بیٹھے جوتوں کے تسمے سی کر یا کسی کے گھر کی دیواریں رنگ کر پیسے جمع کرتے تھے تاکہ بلال کی فیس بھر سکیں۔ مجھے یاد ہے جب بلال نے میٹرک میں پوزیشن لی تھی تو ابا نے خوشی میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ حالانکہ اس دن ان کے اپنے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ تمہارا بھائی افسر بنے گا عائشہ، پھر دیکھنا ہمارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ابا نے ایک بار میرا ماتھا چوم کر کہا۔ تو اس وقت مجھے لگا کہ یہ وقت ضرور آئے گا۔ اچانک کسی کے چیخنے کی آواز آئی تو میں ہوش و آواز کی دنیا سے واپس آ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے گالوں پر بہتے آنسو کو دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ، او عائشہ، مر گئی ہو کیا؟ فاطمہ کی کرخت آواز باہر سے ہوتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ فاطمہ کا ہاتھ میں وہی پرانی بالٹی تھی جس میں وہ گھر کا کچرا جمع کرتی تھی۔ جا کر دیکھو ذرا، اپنے لاڈلے ابا کو صحن میں گندگی پھیلا دی ہے انہوں نے، اور ہاں کچن میں برتن دوبارہ انتظار کر رہے ہیں۔ نوابزادی بن کر کھڑکی میں بیٹھنے سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ فاطمہ نے طنزیہ نظروں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مڑ کر پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف نکل گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر کہوں کہ یہ ابا کا گھر ہے، انہوں نے اسے خون پسینے سے بنایا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ایک بھی آواز ابا کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دے گی۔ میں سر جھکائے باہر نکل آئی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بلال اپنی چمکتی ہوئی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر دفتر جا چکے تھے اور گھر کے گیٹ کے بند ہونے کی آواز میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب اگلے 8 گھنٹے اس گھر میں ابا کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوں گے۔ میں باورچی خانے میں کھڑی رات کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی کہ صحن سے ابا کی ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بس
सीने की जकड़न में मुब्तला थे, लेकिन बिलाल से कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने दवा का जिक्र किया था तो फातिमा ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था कि बीमारों के बहाने कर करके हमें लूट रहे हैं। आयशा, ज़रा सुनना बेटी, अब्बा की धीमी आवाज़ और थकी हुई आवाज़ आई तो मैं अभी हाथ पहुँच कर बाहर निकलने ही लगी थी कि फातिमा अपने कमरे से नमूदार हुई। वो हाथ में महंगा स्मार्टफोन पकड़े, माथे पर बल डाले अब्बा के सामने जा खड़ी हुई। क्या है, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हैं? अभी बिलाल को गए 5 मिनट नहीं हुए और आपके मुतालबे शुरू हो गए हैं। फातिमा का लहजा इतना तीखा था कि जैसे कानों में किसी ने सुई चुभो दी हो। बहू, वो थोड़ा गर्म पानी मिल जाता, सीने में बहुत दर्द है। अब्बा ने नज़रें झुकाकर बड़ी आजिज़ी से कहा तो फातिमा ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, वो कहका जिसमें सिर्फ तंज और नफरत थी। गर्म पानी? वाह जी वाह, यहाँ नौकर लगे हैं आपके लिए। गैस का बिल क्या आपके अब्बा भरते हैं? सारा दिन फारिग बैठकर रोटियां तोड़ना और फिर फरमाइशें करना। ये घर है, कोई खैराती अस्पताल नहीं। भाभी, सिर्फ पानी ही तो महंगा है, मैं दे देती हूँ। मैंने हिम्मत करके बीच में मुदाखलत की तो फातिमा ने मुड़कर मुझे एक ऐसी जहरीली नज़र से देखा कि मेरे कदम वहीं रुक गए। तुम्हारे लाड प्यार ने ही तो इनको बगाड़ रखा है। आयशा, याद रखो, इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा। जाओ, जाकर कपड़ा धो, यहाँ मुरवत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वह अब्बा की तरफ मुड़ी, जो आप शर्मिंदगी से अपने लड़ते हुए हाथ एक दूसरे में बांधे थे। और आप अगर इतनी ही तकलीफ में हैं तो जाकर धूप में बैठ जाएं। वहाँ कोने में जहाँ कचरा पड़ा रहता है वहाँ हवा नहीं लगती। यहाँ बैठकर मेरा रास्ता मत रोकें। जब देखो मनहूस सूरत बनाकर सामने बैठ जाते हैं। बंदे का दिन ही खराब हो जाता है। फिर अब्बा खामोशी से उठ गए थे। इनका कद जो कभी 6 फीट था अब दुखों के बोझ से कमान की तरह झुक गया था। वो घसीटते कदमों से सेहन के इस कोने की तरफ चल दिए जहाँ धूप तप रही थी और दीवार के साथ पड़े कचरे से बू उठ रही थी। मैं किचन की खिड़की से देख रही थी कि कैसे मेरा बाप ने एक बुसी हुई बोरी जमीन पर बिछाई और इस पर बैठ के उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। शायद वो देखना भी नहीं चाहते थे कि जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, इसकी बीवी इन्हें मनहूस कह रही है। थोड़ी देर बाद फातिमा अपने बेटे को लेकर वहां आई। हसन को देख हाथ में चॉकलेट थी, जिसका रेपर इसने वहीं अब्बा के पैरों के पास फेंक दिया था। हसन बेटा, यहाँ मत खेलो, दादा के पास जरासीम होते हैं, बीमार हो जाओगे। चलो अंदर आओ। फातिमा ने हसन का हाथ झटक कर इसे खींचा और अब्बा की तरफ देखकर ऐसे देखा जैसे वहाँ कोई गलाजत पड़ी हो। अब्बा जान, आप अंदर कमरे में क्यों नहीं चले जाते? मैंने बाद में मौका पाकर इनके पास जाकर सरगोशी की तो अब्बा ने अपनी धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी वीरानी थी जो आंसुओं से ज्यादा होलनाक थी। नहीं आयशा बेटी, यहाँ धूप अच्छी है, वहाँ अंदर तुम्हारी भाभी के तानों की आवाज़ें आती हैं। यहाँ कम से कम परिंदों की चहचहाहट तो सुनाई देती है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। जिस बाप ने सर्दी की रातों में अपनी चादर उतार कर बिलाल को उड़ाई थी, आज इन्हें अपने ही घर के कमरे किसी जंदान की तरह लग रहे थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। बावर्ची खाने से उठती तड़के की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, लेकिन अब्बा के कमरे तक सिर्फ भूख पहुंच रही थी। फातिमा ने आज अपनी सहेलियों को बुला रखा था। दस्तरखान पर किस्म किस्म के खाने थे और कहकों का एक शोर था जो हमारी खामोशी का मजाक उड़ा रहा था। मैं जब किचन में पानी लेने गई तो फातिमा ने मुझे रोक लिया। ऐशा, पहले मेहमानों को फारिग होने दो, फिर देखना कुछ बचा तो अब्बा को दे देना। वैसे भी बूढ़े आदमी को दोपहर में हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। मैं कड़वा घोंट भर कर रह गई थी। फातिमा, अब्बा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक कप चाय पी थी। तो क्या हुआ? उन्होंने प्लेट में कबाब सजाते हुए बेनियाजी से कहा। कौन सा? उन्होंने कहीं हल चलाना है, सारा दिन लेटे रहते हैं,
थोड़ी भूख लगेगी तो आजमा ठीक रहेगा। जाओ, आप मेहमानों के सामने बदतमीजी मत करना। मैं बाहर आई तो देखा अब्बा अपने कमरे के दरवाजे से बाहर झांक रहे थे। इनके चेहरे की झुर्रियाँ और अंदर को धंसती हुई आंखें इनकी कमजोरी को गवाही दे रही थीं। 3 बजे जब मेहमान चले गए तो फातिमा ने बची खुची बोटियां और कुछ रोटियां एक प्लेट में जमा कर ली थीं। ये लो, दे आओ अपने अब्बा को, और हाँ कहना कि प्लेट वहीं कमरे में रखें, बाहर आकर बर्तनों का ढेर न लगाएं। मैं जब वो प्लेट लेकर अब्बा के पास पहुंची तो वो तस्बीह पढ़ रहे थे। अब्बा खाना खा लें। अब्बा ने प्लेट की तरफ देखा तो रोटी ठंडी होकर सख्त हो चुकी थी और सालन की रंगत उड़ गई थी। उन्होंने कांपते हाथों से एक नवाला तोड़ा, मगर वो इनके हल्क में फंस गया था। वो जोर जोर से खांसने लगे थे। मैं भागकर पानी लेने गई तो पीछे से फातिमा की आवाज़ आई, लो अब इनका ड्रामा शुरू हो गया। आयशा कह दो इनसे कि ये खांसी कहीं और जाकर करें। हसन सो रहा है, अभी जाग जाएगा तो फिर सर खाएगा। अब्बा ने पानी का गिलास लबों से लगाया और फिर वो नवाला वहीं रख दिया। बेटी, भूख खत्म हो गई है, उन्होंने धीमे से कहा। इनकी आवाज़ में कोई शिकवा नहीं था, बस एक ऐसी थकन थी जो जिंदगी से बेजारी जाहिर करती थी। शाम को जब बिलाल वापस आए तो वो अपने साथ नए जूते और कपड़े लाए थे। उन्होंने सहन में खड़े होकर फातिमा को पुकारना शुरू कर दिया, फातिमा देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो दोनों हंस हंस कर एक दूसरे को चीज़ें दिखा रहे थे। अब्बा लाठी के सहारे अपने कमरे से निकलकर बरामदे तक आ गए थे। बिलाल बेटा ज़रा सुनना, अब्बा ने धीमी आवाज़ में पुकारा तो बिलाल ने मुड़कर देखा। इनके माथे पर एकदम बल पड़ गए थे। जी अब्बा, क्या हुआ? बेटा, वो मेरी ऐनक का शीशा टूट गया है। अखबार भी नहीं पढ़ा जाता और कुरान पढ़ते वक्त भी दिक्कत होती है। अगर तुम शहर जाओ तो अभी अब्बा बात मुकम्मल भी ना कर पाए थे कि फातिमा बीच में बोल पड़ी, देखा बिलाल, मैं कहती थी कि जैसे ही तुम घर आओगे इनकी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। अभी हमने अगले महीने मरी जाने का प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं और इनको ऐनक की पड़ी है। क्या करना है अखबार पढ़कर? वही पुरानी खबरें होती हैं। बिलाल ने एक लंबी सांस ली और अब्बा की तरफ देखे बगैर बोले, अब्बा अभी हाथ ज़रा तंग है, अगले महीने देख लेंगे। वैसे भी अब्बा आपको आराम करना चाहिए, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। फिर वो दोनों हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और अब्बा वहीं खड़े रह गए। इनके हाथ में वो टूटी ऐनक थी जिसे वो बार बार अपने कुर्ते से साफ कर रहे थे, जैसे वो शीशा नहीं बल्कि इनका अपना मान टूट गया हो। मैंने देखा अब्बा ने ऐनक जेब में डाली और खामोशी से दीवार का सहारा लेकर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गए। इस रात उन्होंने छोटी लाइट भी नहीं जलाई थी। अंधेरे में सिर्फ इनकी सिसकियों की हल्की सी आवाज़ आ रही थी जो दीवार के पार मुझे सुनाई दे रही थी, जो इनकी झलसा देने वाली गर्मियों रोज पर थी। दोपहर के वक्त लू के थपेड़े मुझे चेहरे पर महसूस हो रहे थे। बिलाल के कमरे में एसी चल रहा था, जबकि लाउंज में फातिमा बड़े पंखे के नीचे सोफे पर नीम दरार रसाला पढ़ रही थी। मैं किचन में काम ख़त्म करके अब्बा के कमरे की तरफ गई और वहाँ का मंजर देखकर मेरा दिल कट गया। अब्बा के छोटे से कमरे में छत वाला पुराना पंखा पूरी रफ्तार पर होने के बावजूद महज गर्म हवा फेंक रहा था और फिर अचानक एक जोरदार चिरचिराहट के साथ वो पंखा रुक गया। अब्बा जो पसीने में शराबोर बिस्तर पर लेटे थे, उन्होंने आंखें खोलकर हसरत से रुकते हुए परों को देखा तो मैं फौरन बाहर आ गई। फातिमा, अब्बा के कमरे का पंखा जल गया है, शायद इसकी मोटर ख़त्म हो गई है, बहुत गर्मी है वहाँ, अब्बा का दम घुट रहा है। फातिमा ने रसाले से नज़रें हटाए बगैर जवाब दिया, तो मैं क्या करूँ? अब क्या मैं इलेक्ट्रीशियन बन जाऊँ? वैसे भी वो पंखा कितना पुराना था, सारा दिन चलता रहेगा तो जलेगा ही ना। लेकिन फातिमा, अब्बा इस हबस में कैसे बैठेंगे? बिलाल को फ़ोन कर दें कि वो वापसी पर किसी को साथ ले आए। मैंने इल्तिजा की तो वो कहने लगी कि देखो आयशा, बिलाल ऑफिस में काम कर रहा है, इसे इन फजूल बातों के लिए तंग मत करो। और हाँ, नए पंखे के लिए भी पैसे नहीं हैं, अगले महीने वॉशिंग मशीन लेनी है, इसके लिए बचत कर रही हूँ। अब्बा से कहो थोड़ी हिम्मत करें,
हमारे बचपन में भी तो लोग बगैर पंखों के रह लेते थे। फातिमा ने बड़ी बेनियाजी से कहा और दोबारा रसाले में गर्क हो गई। मैं वापस अब्बा के पास आ गई। वो उठकर बैठ गए थे। इनकी बुनियाद पसीने से तर होकर जिस्म से चिपक गई थी और वो हाथ वाले पंखे से खुद को हवा देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बेटी, बिलाल से ना कहना, वो गुस्सा करेगा, अब्बा ने हाँफते हुए कहा। तो मैंने पानी का मग भरा और इनके पास बैठ गई। अब्बा, आप थोड़ी देर लाउंज में सोफे पर बैठ जाएं, वहाँ हवा लग जाएगी। अब्बा ने डरते डरते बाहर झांका। अभी वो बरामदे तक ही पहुंचे थे कि फातिमा की आवाज़ गूंजी, अब्बा कहाँ आ रहे हैं? आप इधर मत आइएगा, मैंने भी पोछा लगवाया है और आपके जूते से मिट्टी के निशान पड़ जाएंगे। और वैसे भी मुझे सहेलियों के साथ फ़ोन पर ज़रूरी बात करनी है। आपकी खांसी से खलल पड़ता है। वापिस अपने कमरे में जाएं। अब्बा के कदम वहीं जम गए थे। उन्होंने बेबसी से अपनी लाठी को थामा और बगैर कुछ कहे वापिस इस तपते हुए कमरे में चले गए। मैंने देखा कि इनकी आंखों की कोशिश गीली थी, लेकिन वो आंसू पसीने में जज़ब हो गए थे। शाम को जब बिलाल आए तो मैंने हिम्मत करके जिक्र कर ही दिया, बिलाल, अब्बा के कमरे का पंखा ठीक करवा दें, वो सारा दिन तड़पते रहे हैं। बिलाल ने कमीज के बटन खोलते हुए बेदारी से कहा, आयशा, तुम तो हर वक्त शिकायतों का दफ्तर खोलकर बैठ जाती हो। मैं थका हारा घर आता हूँ कि सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ आकर पंखे और बिजली के किस्से शुरू हो जाते हैं। अब बस कहो सहन में पेड़ के नीचे बैठ जाया करें, वहाँ कुदरती हवा आती है। लेकिन बिलाल, रात को मच्छर काटेंगे और गर्मी, बस कर दो अब, मेरे पास अभी फालतू पैसे नहीं हैं। बिलाल ने झटके से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। इस रात अब्बा इस दबे हुए कमरे में सारी रात जागते रहे थे। मैं चोरी छुपे इनके पास गई और हाथ वाले पंखे से इन्हें हवा देने लगी। अगर मेरे कमरे में पंखा लगा होता तो मैं इन्हें अपने कमरे में ले जाती, मगर वहाँ तो सिरे से ही ये सहूलत थी ही नहीं। अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। सो जाओ बेटी, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, मैं ठीक हूँ। बस अब थोड़ा ही वक्त बाकी है, फिर ना गर्मी लगेगी ना भूख। इनके अल्फाज ने मेरे कलेजे को छलनी कर दिया था। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मैंने थरथराते हाथों से सालन की देगची चूल्हे से उतारी तो फातिमा लाउंज में बैठी ऊंची आवाज़ में किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी, जबकि अब्बा सहन में बैठे मगरिब की अजान का इंतज़ार कर रहे थे। आयशा, खाना लगाओ, बिलाल आने वाले होंगे। फातिमा ने वहीं से आवाज़ लगाई। इनके लहजे में मेरे लिए सिर्फ हुक्म था, कोई अपनापन नहीं था। मैंने चुपचाप दस्तरखान बिछा दिया था। बिलाल घर दाखिल होते हुए इनके हाथ में फूलों का एक बड़ा शापर था जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। अब्बा ने धीमे से अंदर कदम रखा, शायद वो भी भूख की शिद्दत से नडाल थे। अब्बा, आप अभी से यहाँ आकर बैठ गए, पहले हाथ मुंह धोकर आए, आपकी तरफ से अजीब सी बू आती है। फातिमा ने नाक पर दुपट्टा रखते हुए जहरीले लहजे में कहा। तो अब्बा के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी लड़ती हुई उंगलियां अपनी कमीज के दामन में छुपाईं और खामोशी से वापस मुड़ गए। मेरे सीने में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया था। यह वही अब्बा थे जो बिलाल के बचपन में इनकी गंदगी अपने हाथों से साफ करते थे, और आज इनकी बीवी को अब्बा के वजूद से बू आ रही थी और वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। बिलाल ने एक बार भी फातिमा को टोका नहीं था। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठकर सेब छीलने लगे थे। थोड़ी देर बाद अब्बा वापस आए और दस्तरखान के कोने में दबक कर बैठ गए। मैंने इनके सामने प्लेट रखी तो अब्बा की नज़रें इस फल वाले शापर पर थीं। शायद इनका दिल भी कुछ मीठा खाने को चाह रहा था। बिलाल ने एक सेब काटा, खुद खाया और एक टुकड़ा फातिमा की तरफ बढ़ा दिया, मगर अब्बा की तरफ देखा तक नहीं था। इसने मेरी पूरी सोच और ज़िंदगी बदल दी जब इसने ये अल्फाज कहे कि सेब बहुत महंगे हैं, सिर्फ हसन के लिए लाया करो। फातिमा ने चबा चबा कर कहा तो अब्बा ने जल्दी से नज़रें झुका लीं और कांपते हाथों से रोटी का नवाला तोड़ने लगी। इनके हाथ इस कदर लर्ज रहे थे कि सालन की बूंदें दस्तरखान पर गिरने लगी थीं। बिलाल की तेवरियां चट गईं। देखो आयशा, कल से अब्बा को इनके कमरे में ही खाना दे दिया करना, सारा दस्तरखान गंदा कर देते हैं।
बिलाल ने बेजारी से कहा। तो मैंने बिलाल की तरफ देखा। इस वक्त मेरी आंखों में इल्तिजा थी। बिलाल, ये हमारे अब्बा हैं, अब क्या मैं खाना छोड़ दूं? इनकी वजह से मेरी भूख उड़ जाती है। बिलाल ने गुस्से से चम्मच प्लेट पर पटक दिया था। इसी लम्हे अब्बा ने पानी पीने के लिए कांपते हाथों से वो चीनी की कीमती प्लेट थोड़ी सी सरकाई ताकि गिलास उठा सके, लेकिन कमजोरी की वजह से इनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो प्लेटें एक जोरदार धमाके के साथ फर्श पर जा गिरीं। सफ़ेद चीनी के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्बा का भरम बिखर गया था। कमरे में खामोशी छा गई थी। अब्बा का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो सहम कर अपनी कुर्सी से थोड़ा पीछे हुए। इनकी आंखों में वो खौफ था जो किसी मासूम जानवर की आंखों में कसाई को देखकर होता है। मेरी प्लेट, मेरा पूरा सेट खराब कर दिया, ऐसे इंसान ने, फातिमा एकदम चलाई। इसकी आवाज़ में इतनी नफरत थी कि मेरा दिल लर्ज उठा। बिलाल गुस्से में अब्बा की तरफ बढ़ गए थे। मैंने भाग कर अब्बा के सामने आकर खड़ी हो गई। बिलाल, गलती से हुआ है, अब्बा जानबूझकर थोड़ी, हट जाओ पीछे आयशा। बिलाल ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ झटक दिया। ये अब रोज का ड्रामा हो गया था। खाना खिलाओ तो नखरे, कपड़े धो तो गंदगी। अब्बा, अगर आपसे संभला नहीं जाता तो अपने कमरे में रहा करें, क्यों हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है? फिर लड़ाई का वो तूफान शुरू हुआ कि मेरा जी चाहा मैं अपने कान चीर लूं। अब्बा ने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। वो बस खाली खाली नज़रों से अपने इस अफसर बेटे को देख रहे थे जिसकी एक एक हड्डी अब्बा की कमाई हुई से बनी थी। कल से ये मुझे दस्तरखान पर नजर न आए। जाओ, इन्हें ले जाओ आयशा। फातिमा ने अब्बा के हाथ से रोटी का नवाला छीन लिया था। अब्बा उठे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। वो सहारा लेने के लिए दीवार की तरफ बढ़े तो फातिमा ने चीख कर कहा, दीवार गंदी मत करें, अभी कुछ वक्त पहले ही तो पेंट करवाया है। अब्बा दीवार से हाथ हटाकर बाहर सेन की तरफ निकल गए थे। मैं वहीं फर्श पर बैठी चीनी की इन टुकड़ों को देख रही थी जो शायद अब्बा के दिल के टुकड़े थे। प्लेट टूटने वाले वाक़ये के बाद घर की फ़ज़ा में एक ऐसी कड़वाहट बढ़ गई थी जो सांस लेना दुश्वार कर रही थी। बिलाल और फातिमा ने अब्बा से बात करना तो दूर, इनकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। अब्बा एक साए की तरह घर के कोनों में दबके रहते थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसी पुरानी चीज़ हो जो कूड़ेदान में फेंकने का इंतज़ार किया जा रहा हो। एक दोपहर जब मैं किचन में आटा गूंद रही थी, फातिमा अंदर दाखिल हुई। इनके हाथ में मिट्टी का वह बड़ा प्याला था जिसे हमने सेहन में बंधी बकरी के लिए रखा हुआ था, जिसमें इसे पानी दिया जाता था। इस बर्तन के किनारों पर खराशें लगी हुई थीं और वो देखने में ही मकरू लग रहा था। ये क्या कर रही हैं आप? मैंने अक्का बक्का होकर पूछा जब उन्होंने इस बर्तन में सालन और 2 सूखी रोटियां डालना शुरू की। वही कर रही हूँ जो इनके लायक है, फातिमा ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे भाई का हुक्म है कि अब्बा को चीनी के बर्तन में खाना नहीं मिलेगा। कल इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, अब क्या मैं रोज़ रोज़ नए सेट खरीदूँ? ये बर्तन नहीं टूटेगा और ना इसके ज़ाया होने का गम होगा। मगर फातिमा, ये तो बकरी का बर्तन है, इसमें तो हम जानवर को डालते हैं। मेरी आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। तो और क्या है वो? फातिमा ने तीखी नज़रों से मुझे देखा। खाते जानवरों की तरह हैं, गिराते जानवरों की तरह हैं, तो बर्तन भी वैसा ही होना चाहिए। जाओ, ले जाओ इसे और कह देना कि सेहन में बैठकर खाएं, कमरे में बदबू नहीं जानी चाहिए। मैं जब वो मैला प्याला उठाकर बाहर निकली तो मेरी टांगें कांप रही थी। सेहन के एक कोने में नीम के दरख्त के साए तले अब्बा अपनी चारपाई पर बैठे थे। इनके करीब ही हसन अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची, हसन ने खेल रोक दिया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने लड़ते हाथों से वो बर्तन अब्बा के सामने रखा और जब अब्बा ने इस बर्तन को देखा तो इनके चेहरे पर एक ऐसी अजियत लहराई जैसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। इनकी नज़रें एक लम्हे के लिए भी मुझ पर जमी थीं, जैसे वो मुझसे पूछ रहे हों, बेटी क्या मैं वाकई इतना गिर गया हूँ? मैंने शर्म से नज़रें झुका ली थीं। इसी वक्त हसन करीब आया और मासूमियत से बोला, ये तो मेरी बकरी का प्याला है ना दादा अबू, इसमें खाना क्यों खा रहे हैं? फातिमा जो बरामदे में खड़ी ये सब देख रही थी।
वहीं से चलाई हसन, इधर आओ बेटा, दादा अबू अब इसी में खाना खाया करेंगे, इनका नया बर्तन यही है, तुम अपने खेल पर तवज्जो दो। हसन वहीं खड़ा हो गया था। इसके हाथ में लकड़ी का वो छोटा सा डंडा था जिससे वो मिट्टी खोद रहा था। इसने एक नज़र अपनी माँ पर डाली और फिर बड़ी हैरत से इस बर्तन को देखने लगा जिसमें अब्बा रोटी भगोकर खाने की कोशिश कर रहे थे। अब्बा का हर नवाला हलक में कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर वो खामोशी से सर झुकाए खाते रहे थे। हसन ने अपना डंडा वहीं मिट्टी में गाड़ लिया और अब्बा के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गए। इसकी मासूम नज़रें अब्बा के लड़ते हाथों और इस मिट्टी के प्याले की तरफ घूम रही थी। इसके जहन में क्या चल रहा था, हम में से कोई नहीं जानता था। दादा अबू, क्या ये लकड़ी कभी बन सकता है? हसन ने सुलगता सवाल किया। अब्बा ने सिर्फ एक उदास मुस्कुराहट के साथ इसके सर पर हाथ रखा, मगर फातिमा ने लपक कर हसन का हाथ पकड़ा और इसे घसीटते हुए अंदर ले गई। चलो अंदर, बूढ़े के पास बैठकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो रहा है। मैंने देखा। जाते जाते हसन ने एक बार फिर इस बर्तन को मुड़ कर देखा, जैसे वो इसकी शक्ल अपने दिलो दिमाग में नक्श कर रहा हो। इस रात जब मैंने अब्बा के कमरे से रोने की दबी दबी आवाज़ें सुनी तो मुझे महसूस हुआ कि इस घर की दीवारें हम पर गिरने वाली हैं। बिलाल जब घर आए तो फातिमा ने इसे बड़े फख्र से बताया कि इसने अब्बा का बंदोबस्त कर दिया है। बिलाल ने सिर्फ एक सरसरी नज़र सहन में पड़े इस प्याले पर डाली और हंसकर बोले, चलो जान छुट्टी, अब रोज़ रोज़ का झगड़ा तो नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो लकड़ी का डंडा जो हसन के हाथ में था वो इस घर की तकदीर बदलने वाला था। कुछ दिन बाद शाम के साए सहन में फैल रहे थे। आसमान का रंग उदासी से बोझल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्बा के चेहरे की वीरानी थी। बिलाल दफ्तर से थके हारे घर दाखिल हुए तो इनकी नज़र सहन के बीचों बीच बैठे हसन पर पड़ी। वो मिट्टी में लुथड़ा इंतहाई संजीदगी से एक लकड़ी के डंडे में ज़मीन पर कुछ लकीरें खींच रहा था और इसके सामने वही बकरी वाला मैला मिट्टी का प्याला रखा था। बिलाल के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। हसन बेटा, ये क्या खेल है? ये मैला प्याला यहाँ क्यों रखा है और इस डंडे से मिट्टी क्यों खोद रहे हो? हसन ने सर उठाया और इसकी छोटी सी पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में वो मासूमियत जो कभी कभी बड़े होकर बड़ा पत्थर भी पिघला देती हैं। पापा, मैं खेल नहीं रहा, मैं तो अपना काम सीख रहा हूँ। हसन ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। कौन सा काम मेरे शहजादे? बिलाल ने इसके करीब बैठते हुए प्यार से पूछा। हसन ने वो लकड़ी का डंडा मजबूती से थामा और सहन के इस कच्चे कोने की तरफ इशारा किया जहाँ अब्बा सहमे बैठे थे। बाबा, मैं ये देख रहा हूँ कि इस डंडे से मैं आपको और मामा को कैसे हाँक कर बाहर लाया करूँगा, जैसे मामा दादा अब्बू को बाहर निकालती हैं। मैंने निशान लगा लिए हैं, एक बिस्तर आपका यहाँ होगा और एक मामा का। बिलाल का जिस्म जैसे बर्फ हो गया था। इनके कानों में हसन के अल्फाज हथौड़ों की तरह बुझ रहे थे। और पापा, हसन ने मिट्टी का प्याला उठाकर बिलाल के सामने किया, मैं अभी से देख रहा हूँ कि इसमें कितनी रोटी आती है ताकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे नया बर्तन न खरीदना पड़े। मामा कहती है ना कि बूढ़ों पर पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए, तो मैंने सोचा मैं अभी से ये सब संभाल कर रख लूँ। हसन ने बड़ी मासूमियत से बिलाल की आंखों में झांका। पापा, जब आपको इस प्याले में रोटी दूंगा और इस डंडे से डराऊंगा तो आप रोएंगे तो नहीं, जैसे दादा अब्बू कल रो रहे थे? बिलाल के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई थी। इसे लगा जैसे इसके मासूम बेटे ने इसके सीने में खंजर उतार दिया हो। हसन की एक बात इसके ज़मीर पर कोड़े की तरह बरस रही थी। इसका वो तकब्बुर, इसकी अना सब इसी मिट्टी के प्याले में गिरकर पाश पाश हो गए थे। बिलाल की आंखों में आंसू का एक सैलाब रवां हो गया था। इन्हें अपनी तमाम ज़्यादतियाँ, अब्बा की वो खामोश सिसकियाँ, वो ठंडी रोटियाँ और तजलील एक फ़िल्म की तरह नज़र आने लगी थीं। वो वहीं मिट्टी पे बैठ के और धाड़े मार मार कर रोने लगे। फातिमा जो बरामदे में खड़ी ये सब सुन रही थी, इसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिरा और किरची किरची हो गया। इसका वह गुरूर जिस पर इसे नाज था, इसके अपने ही बेटे ने खाक में मिला दिया था।
وہ लड़खड़ाते कदमों से बिलाल के पास आ गई थी। बिलाल, ये हसन क्या कह रहा है? इसकी आवाज़ कांप रही थी। बिलाल ने तड़प कर फातिमा की तरफ देखा। फातिमा, सुनो, ये क्या कह रहा है? ये हमारा मुस्तकबिल लिख रहा है। हमने जो बोया है वो काटने का वक्त आने वाला है। ये डंडा और ये प्याला हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमने अपने बाप को नहीं, अपनी आखिरत को जलील किया है। फातिमा के पाँव से जान निकल गई थी। वो भी वहीं फर्श पर बैठकर सिसकियां लेने लगी थी। फिर बिलाल दीवारों की तरफ उठे हुए और भागते हुए सहन के इस कोने में पहुंचे जहां अब्बा बैठे थे। उन्होंने बगैर कुछ सोचे अब्बा के वो धूल में अटे हुए पाँव पकड़ लिए और अपने सर इनके कदमों में रख दिया। अब्बा, मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधा हो गया था। अब्बा, मैंने अपनी जन्नत अपने हाथों से आग में डाल दी। मुझे मारो अब्बा, मुझे इस डंडे से मारो, लेकिन मुझे माफ़ कर दे। बिलाल के आंसू अब्बा के पाँव भिगो रहे थे। अब्बा जो बरसों से इस लम्स को तरस गए थे, हक्का बक्का रह गए थे। इनके थरथराते हाथों ने बिलाल का सर उठा लिया था। बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अब्बा की आवाज़ में अब भी वही प्यार, वही मुखलिसी थी जो बचपन में थी। फातिमा भी दौड़ती हुई आई और अब्बा के दूसरे पाँव से लिपट गई। अब्बा जी, हमें माफ़ कर दें, हम भटक गए थे, हम भूल गए थे कि हमें भी इसी दहलीज पर आना है। खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें। अब्बा ने अपनी धुंधली आंखों से इन दोनों को देखा और फिर हसन को, जो दूर खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था। अब्बा ने बिलाल को सीने से लगा लिया था। वो बूढ़ा बाप जिसे तजलील के सिवा कुछ नहीं मिला था, इसने एक पल में सब कुछ भुलाकर अपने बेटे को गले से लगा लिया था। मैं दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी और मेरी आंखों से खुशी के आंसू रवां थे। इस रात दस्तरखान पर अब्बा सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे और बिलाल अपने हाथों से इन्हें लुकमे खिला रहे थे। घर की फजा बदल चुकी थी, मगर वो लकड़ी का डंडा अब भी सहन के कोने में पड़ा था। वो हमें ये याद दिलाने के लिए काफ़ी था कि औलाद वही नहीं करती जो हम इसे सिखाते हैं, बल्कि वो करती है जो वो हमें करते देखती है।